Hello, good morning, ladies and gentlemen. Morning. Welcome to episode 2 of Simply Speaking. Today again we have our guest Ratish Mehta, just like before. How are you, Ratish? गेस्ट ऐसे बोल रहा है जैसे हम मिलते नहीं है रोज. हाँ, तो दुनिया लोगों से तो रोज नहीं मिलते ना. How are you? फाइन. क्या चल रहा है? मत पूछ. लॉकडाउन चल रहा है सबकी तरह. बाहर जाना है. कोई नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. तो पिछली बार let's just get into it, ठीक है? No introduction this time. हाँ, if you want to see introduction, watch the previous episode. कहीं यहाँ पे आ जाएगा. नहीं आएगा. ठीक है, और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हाँ. ठीक है. तो पिछली बार we talked about India and its relations with other countries, है ना? हाँ. Briefly about that. पार्ट 2 का है पिछले एपिसोड का. Briefly about that, हाँ. ठीक है. तो I was thinking कि India is big largest democracy in the world, है ना? So there is also another country which is, pun not intended, huge in terms of huge in terms of democracy. Okay, we'll get into that also later. ठीक है, which is also huge in democracy. ठीक है, मतलब it has dominated, if I am correct, the history of geopolitics and international politics in major ways. It has influenced many countries. It has changed the course of history for many countries. Arguably better ways, non-better ways, that's arguable, but it has tangled out in every situation, है ना? तो which other country can we talking about except the United States of America? Or also as we देसी लोग call it, America. अमेरिका है. तो let's talk about America, है. तो whenever we think of politics, whenever we think of democracy, then लगभग only 2 countries come to my mind: India, okay, and United States of America. बाकी भी है. और which other countries are have democracy? UK, France, Germany, Canada, Australia, New Zealand, Okay, Pakistan, Bangladesh, हाँ. Sri Lanka, okay, but African countries, Ethiopia. in terms of democracy progress, हाँ. if I may call it, India and US are ahead, No. or they have been pioneers. No. India is the youngest democracy amongst all of them. Amongst these major democratic countries, India is the youngest of them. 1947, we are barely 70 years old, 75 years old. It still blows my mind कि 70 years में हमने इतना कुछ achieve कर लिया, but still we have so many things to deal with. But the point क्या है? Our rate of achieving all those things is so much more higher than the countries who were already democratic. You look at America, you look at Canada, you look at Australia, है ना? These are countries that attained their freedom, so-called independence, a long while ago before us. And if you look at today's scenario, we are considered at par with them. Okay. Not militarily, economically, socially, culturally, fundamentally, influentially, development wise. It's worth mentioning that many countries have tried democracy and have failed massively. Yeah. Like super massively. Especially countries where there is a lot of instability. I think African countries are a good example of this. See, democracy ना बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में. ठीक है, इट कैन नॉट बी कट एंड पेस्ट एंड यूज्ड इन एवरी कंट्री. कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. अमेरिकन्स ने ये किया. अमेरिकन्स ने वियतनाम हो, ठीक है, इराक हो, आपका ये जो भी नॉर्थ अफ्रीकन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है जहाँ पे जाके उन्होंने इन्वेड किया, अफगानिस्तान हो जहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्ती डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की ताकि बिकॉज इट वाज द सो कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री, दे मैसिवली फेल्ड. सी पता है क्या है, एक ना जेंगा गेम है ना,
हाँ, चेंगा हाँ, है ना, हाँ, वो हाँ, उसमें वो हाँ, निकाल निकालने के और होते फिर कई बार लगाना लगाना होता होता है, तो कोई भी गलत पीस निकाल दिया ना पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है। ओह, तो फॉर एग्जांपल इराक लेते हैं, हाँ, इराक में क्या किया, सद्दाम हुसैन वाज अ मास मर्डरर, हम्म, मास मर्डर मतलब बहुत लोगों को उसने मारा। उसने पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भी बहुत टारगेट किया, कुड्स की जो कम्युनिटी है उन पे केमिकल वॉर्स, उसने केमिकल उफ। वेपन्स यूज़ किए। तो ही वाज लिटरली मतलब द सो कॉल्ड टिपिकल विलन ऑफ इन द अमेरिकन आइज। ओके, तो बट द फैक्ट इज दैट ही वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ अमेरिका। Americans made Saddam Hussein who the Saddam Hussein is, who the Saddam Hussein became, the What? Saddam Hussein that became. Yeah, so was Osama bin Laden. They are all products of Oh. American मतलब by manufacturing. that you mean कि they were trained? They were promoted by America. Okay, so Saddam Hussein की हेल्प ली गई थी अमेरिकन्स ने। they took help from Saddam Hussein in the Iran-Iraq war. 1980s में 8 साल की वॉर हुई थी ईरान और इराक के बीच, एंड ईरान वॉज फंडामेंटली एट कॉन्फ्लिक्ट विद द अमेरिकन्स, एंड सो अमेरिकन्स वांटेड कि उनको जाके वहाँ पे ना लड़ना पड़े, तो इसलिए उनने सद्दाम हुसैन को एड किया था ताकि वो वॉरफेयर कंटिन्यू कर सके, ईरान को डिस्टेबलाइज कर सके। बिकॉज ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में, और खमेनाई आ गया था, उनका जो रिलीजियस लीडर था शाह ऑफ ईरान को ओवरथ्रो करके वहाँ से जो भी उनका सेक्युलर आइडिया था ईरान का उसको बिल्कुल कन्वर्ट करके एक रिलीजियस स्टेट बना दिया था, थियोलॉजिकल स्टेट बना दिया था उसको, थियोक्रेटिक स्टेट बना दिया था। ओके, सो दैट्स वाई दैट वाज अगेंस्ट द अमेरिकन इंटरेस्ट। तो दे प्रमोटेड सद्दाम हुसैन टू फाइट विद ईरान, एंड दे अलाउड दैट टू हैपन इन दैट रीजन। ओके, तो इवेंचुअली दे ओनली हैड टू क्लीन अप। तो जब 91 में कुवैत का इन्वेजन हुआ, दैट वाज द टाइम दैट रियलाइज, अच्छा ठीक है ये तो बहुत बड़ा कूफ अप हो गया, हमने गलत बंदे को प्रमोट कर दिया, वो हमारे अगेंस्ट ही धीरे धीरे वो हमारे अगेंस्ट ही धीरे धीरे आके हमारे को ही काटेगा आके। ओके, सेम उसामा बिन लादेन तालिबान के साथ सेम हुआ। जब 1970s में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया, बिकॉज दे वांटेड कि अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट रेजीम रहे, तो उस इन्वेजन में अमेरिकन्स डायरेक्टली हेल्प नहीं कर पा रहे थे, दे डिड नॉट वांट टू गेट इनटू द टेबल। कोल्ड वॉर चल रहा था, सो कोल्ड वॉर वाज बेसिकली proxy wars happening many wars happening around the world in which two countries were not directly involved but indirectly aiding everybody. Okay. Indirectly aiding rival groups. तो मतलब it's the modern way of warfare. हाँ, ये लोग direct war तो कभी नहीं होती इस टाइम पे। In this area there's almost never direct war, except in some cases. These big countries always fight in indirect ways. So what happened was अफगानिस्तान के टाइम पे the Americans, मैंने शायद लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, इसके बारे में डिस्कस किया था कि अमेरिकन स्टार्टेड सप्लाइंग आर्म्स एंड एमिनिशंस टू द मुजाहिदीन ऑफ अफगानिस्तान, टू द रिबेल फाइटर्स ऑफ अफगानिस्तान। तो व्हाट हैपेंड वाज देन स्लोली एंड स्लोली दीज रिबेल फाइटर्स जिनको अमेरिकन सप्लाई कर रहे थे हम थ्रू द ISI ऑफ पाकिस्तान, दे स्टार्टेड टू यू नो कम इनटू सो मच ऑफ पावर कि बाय द टाइम 9/11 हैपेंड, they were in so much of control of Afghanistan that the Americans literally had to go and invade the country, literally had to go and bombard the whole country जिसके लीडर्स को उन्होंने ही जन्म दिया था। और काइंड ऑफ मेक सेंस, It is, you know what, it is a vicious होता ही cycle. नहीं ना, It is a vicious cycle. एक साइकिल है जो नेवर एंडिंग है। Once you sow the seeds of a conflict, it is literally very 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 difficult to come out of that. Now imagine the American government is sitting with the Taliban and making a peace deal with them. मतलब you're literally sitting with the people who butchered, who literally killed your army men. You're sitting on the table with them just because you're so fed up that your army is there, you are spending so much in that country, you just want to get out of there. But you got in there in the first place. You build that whole problem in the first place. Because speaking of you got into it, Americans they have very large history of getting into conflicts, है ना, with जो अभी that is only after 1947. okay. No, 1945. Okay, after but the Second World War. In the second half of the 20th century they have inserted themselves into many wars. तो मेरे को I just want to understand कि why do they have this ideology of कि हाँ मेरे को तो इसमें घुसना पड़ेगा, like this seems like a place for me to get in. Now what are their real intentions we don't know, but why do they
like getting into things. ये ना ये तभी जब कोई कॉन्फ्लिक्ट को समझना चाहता है ना, मॉडर्न डे कॉन्फ्लिक्ट को, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कोल्ड वॉर पीरियड, कि वो कोल्ड वॉर पीरियड क्यों इतना ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है, क्यों उस पर इतना ज़्यादा बोला जाता है कि जब अगर तुम्हें कोई कॉन्फ्लिक्ट समझना है इस टाइम का, तो यू हैव टू गो बैक टू द कोल्ड वॉर, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच, जब दो आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स के बीच में वॉर हो रही थी, तो जब इट वॉज ऑल अबाउट ट्राइंग टू स्प्रेड योर वे ऑफ सोसाइटी इन टू अनदर कंट्री. तो व्हेन सोवियत यूनियन स्टार्टेड टू यू नो हैम्पर इन ऑल दीज कंट्रीज, मतलब कोरियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन ने एड किया, तो इनवेरिएबली जो सदर्न पार्ट ऑफ कोरिया था, अमेरिका हैड टू इंटरवीन. सेम हुआ वियतनाम में. वियतनाम में जब नॉर्दर्न साइड ऑफ वियतनाम वाज बीइंग एडेड बाय, इट वाज नॉर्थ और साउथ, आई एम नॉट श्योर कौन सा साइड ऑफ, हाँ इट वाज नॉर्थ ओनली, दैट वाज एडेड बाय, नो इट वाज साउथ, आई एम नॉट श्योर, आई कंफर्म कर लेना थोड़ा पढ़ के. तो जब कॉन्फ्लिक्ट में सोवियत यूनियन आ चुका था, तो अमेरिकन्स इनवेरिएबली हैड टू कम, बिकॉज अगर वो उस चीज़ को छोड़ देते ना, तो पूरा जो जियोग्राफिकल एरिया है वुड कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन एंड कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. ओके, टू काउंटर दैट आइडियोलॉजी दे हैड टू कम इनटू पर्सपेक्टिव एंड सेट द टोन राइट, कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, यू कैन नॉट बुली और यू कैन नॉट इम्पार्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू. So it is basically the same thing. It is the same story of whole history. It is all about power, territory, power influence upon a particular territory. So it's the same thing what the kings used to do, same thing what all empires have tried to do. empire जो monarchical period था ना, जहाँ पे monarchs का influence होता था instead of elected governments, या फिर instead of you know normal random citizen rising to power and holding that position. उस टाइम पे क्या था, so it's called the Westphalian theory. Westphalia treaty हुआ था एक, तो उस ट्रीटी में दैट इज कॉल्ड द ब्रेकिंग पॉइंट व्हेन वी यू नो लिटरली ब्रोक द आइडिया ऑफ किंगशिप इनटू स्टेटशिप. ओके, कि किंग, अब जो किंग का इन्फ्लुएंस है वो उतना नहीं रहेगा, रादर देन जो एलीट लोग या जो पावर हंगरी लोग जो पावर में आ जाते हैं ना, वो लोग कैसे अपने नेशन को आगे बढ़ाएंगे. ओके, इट वाज नॉट ऑन ब्लड एनीमोर. ओके, द seats of power were not based on blood anymore, but on intellectualship and trust of the people. Not basically trust of the people, but ठीक है, एक उसमें भी एक बायसनेस था कि कौन लोग पावर में आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते, क्योंकि एक एलीट ग्रुप था, एलीट सेक्शन था, जो रिच बिजनेसमैन है ना, एरिस्टोक्रेट्स जो थे, वो लोग पावर में आने लगे. तो जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम देखते, आई कम बैक टू वेस्टफालिया, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम देखते हैं ना, इट हैज़ गॉन थ्रू अ फुल फ्लेज एवोल्यूशन टू कम हियर. मतलब कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ और अब वो कहाँ तक पहुँचा है, उसका भी एक एवोल्यूशन है. खाली डेमोक्रेसी ऐसे कट एंड पेस्ट करके हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन गए हैं, उसमें भी उनके भी अप्स एंड डाउन्स आए, तब जाके हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखते हैं. which मतलब when you say this, the only thing comes to mind is the reason why India has gained the rate of achievement is much more is because we have already taken things that other countries have already learned about. मतलब दूसरी कंट्रीज ने कुछ सोचा, इम्प्लीमेंट करा, गलत हुआ तो हमने उसको काउंटर करने के लिए कुछ अपने में ले लिया, अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसको ले लिया. तभी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो इफ़ यू लुक एट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ बेसिकली नॉट बेसिकली बट एट अ वेरी बिग लेवल इट इज़ a constitution which is taken from many different countries. Many countries. We have so many of our constitutional parts from the American Constitution, from the Soviet Union's Constitution, from Irish Constitution, from Australian Constitution, Canadian Constitution, है ना, इन सब से हमने ले के फिर अपना एक Constitution बनाया, और प्लस हमारे और एडिशंस थे उसमें. तो all the kind of knowledge that was already present for society to run was somewhat already prevalent in the world. Okay, it was already out there. We just took it from it, learned from it. ये अम्बेडकर से जो फाइनल स्पीच था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उससे पूछा था कि हमने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन. तो अम्बेडकर ही गेव अ वेरी गुड रिप्लाई. ही सेड कि नोबडी हैज़ अ कॉपीराइट ऑन हाउ अ सोसाइटी शुड बी रन. नोबडी हैज़ द राइट टू यू नो से कि ये मेरा है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स. आर ultimate goal is to achieve the kind of society which is beneficial for all, which does not see racial discrimination, which does not see gender discrimination, which does not see caste discrimination. मतलब ये मैं ऐड करके उसका elaborate whole another topic. हाँ, this is a whole another topic. Westphalian society और Westphalian treaty में, हाँ, तो उस treaty में क्या हुआ था कि basically it was कि अब जो मोनार्क्स थे ना, वो लोग तो अपने आसपास का एरिया कैप्चर करके उसको अपना किंगडम का इन्फ्लुएंस बना लिया करते थे, है ना.
तो वेस्टफिलियन ट्रीटी ने कहा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मतलब तुम यहाँ वहाँ कॉन्कर करके तुम पूरा ले लोगे तो बाकियों का क्या होगा। तो मैं बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो दे सेड कि अब ना एक टेरिटोरियल बाउंड्री होगी जो डिमार्केट करके बोलेंगे कि ये तुम्हारा एरिया है, तुम्हारा रूल तुम्हारा इन्फ्लुएंस इसी एरिया तक लिमिटेड है, इससे आगे नहीं जा सकते। इससे आगे गए तो फिर यार कोई नहीं बहुत irritating है। कोई नहीं हाँ। अगर इससे आगे गए तुम तो मतलब ये फिर कॉल फॉर वॉर है, ये एक वॉर क्राइम है। तो अब जंग होगी फिर। अब तुम अगर ज़्यादा अपने आप को ओवर एम्बिशियस बनोगे, किसी टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो फिर भाई ये तो प्रॉब्लम है। तो हम सब फिर आवाज़ उठाएंगे और फिर बाकी सब तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। तो बेसिकली दे हेल्ड द किंग अकाउंटेबल, द person in power was accountable. They held the person power accountable for over ambitiousness. 1776 में they signed the Declaration of Independence. अच्छा ठीक है, चल और पीछे जाते हैं इसको और क्लियर। उस टाइम पे ना बहुत कुछ हो रहा था, मतलब पूरी सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम था वो। Yes, this is mind blowing for me.